کمیٹی کی بڑی بیٹھک کی جس میں شرکا نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی مظاہرین کو آگے بڑھنے دیا جائے گا، نہ قانون کی عمل درآمدی میں خلل ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔ شرکا نے واضح کیا صرف آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات کیے جائیں گے، کوئی غیر آئینی مطالبات تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پولیس اہلکاروں کو مارنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہجوم کو مزید آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تحمل کا مطلب ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے، قانون کی عملداری میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذاکرات صرف آئین و قانون کے دائرے میں ہوں گے، غیر آئینی اور بلا جواز مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کسی بھی گروپ یا عناصر کو امن و امان کی صورتحال بگاڑنے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور اہلکاروں پر تشدد کا رویہ قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم رکھیں گے، پولیس اہلکاروں کو مارنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی ISI، وفاقی وزراء سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے لیکن ریاست کے ریٹ کو ہر حال میں قائم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا کوشش کر رہے ہیں معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو۔ وزیر اعظم جلد صورتحال پر خطاب کر کے حکومت کا بیانیہ پیش کریں گے۔ گورنمنٹ کی ریٹ کو، امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا، اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو پائیں۔ ممکن ہے شام کو میرے، اور ممکن کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور نور اللہ قادری صاحب کے ان سے دوبارہ مذاکرات ہوں۔ سعد رضوی صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، میں نے لاہور میں بھی ان سے بات چیت کی تھی۔ ان کو مارچ روکنا چاہیے اور اپنے مذاکرات کے نتائج دیکھنے چاہیے۔ پرائم منسٹر شاید کل خطاب کریں قوم سے یا پرسوں کریں، ساری صورتحال کا حالات حاضرہ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ پاکستان نے بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کیا، یہ جتھے ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ڈنڈے کے زور پر ریاست سے اپنی بات نہیں منوائی جا سکتی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کالعدم تنظیم کو دو ٹوک پیغام، کہا ریاست کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے گھروں کو جائیں۔ حکومت زیادہ دیر مذاق برداشت نہیں کر سکتی، جتنا صبر کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، مظاہرین کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے، یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے، سوٹے لے کے، لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے، پولیس والوں کو شہید کر کے، ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاؤں، پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ حکومت مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، ہمارے لمیٹیشنز ہیں۔ ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں۔ تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے۔ ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی۔ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر فساد ہے۔ کالعدم تنظیم کا اسلام آباد کی جانب مارچ وزیر آباد کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مظاہرین آج رات وزیر آباد بائی پاس پر قیام کریں گے۔ انتظامیہ نے بھی تیاری پکڑ لی، خندقیں کھود دی گئی ہیں، دریائے شناخت کے پل پر بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ جی ٹی روڈ کے اطراف کے شہروں میں موبائل سگنلز جام ہے، ٹرانسپورٹ نہ پہنچنے کے باعث پیٹرول اور اشیاء فروشوں کی قلت پیدا ہو گئی۔ پولیس نے اب تک 52 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کالعدم تنظیم کے مارچ کا 8واں دن، مظاہرین وزیر آباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔ انتظامیہ نے مارچ کے شرکا کو دریائے چناب کے پل پر روکنے کے انتظامات کر لیے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی، پل پر رکاوٹیں بھی تعمیر کی گئیں۔
दरियाई चुनाव का पुल सील किए जाने से जीटी रोड पर गुजरात और वजीराबाद के दरमियान तमाम जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। जहलम में लोग कश्तियों से सफर करने पर मजबूर हैं। मेरी छोटी सिस्टर का पेपर था BA LLB फाइनल का, गुजरात सेंटर था उसका, तो अभी दरिया के रास्ते मैं उसको गुजरात छोड़ के आया हूँ वापस। 200 रुपया ले रहे हैं ये मोटरसाइकिल का और 50 रुपए बंदे के ले रहे हैं और हम तो मजबूर हैं, बस जाना तो पड़ेगा। एहतजाज के बायस जीटी रोड के इतराफ के शहरों में मोबाइल सिग्नल्स जाम है। जिंदगी का पहिया तकरीबन रुक चुका है। ट्रांसपोर्ट न पहुंचने के बायस पेट्रोल और चिया खोरोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। पंजाब पुलिस ने 8 रोज के दौरान 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 21 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कलअदम तंजीम से निमटने का मिशन, इंतजामिया ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। चनाब टोल प्लाजा पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। रेंजर्स ने चनाब टोल प्लाजा से 500 मीटर आगे लाइन खींच दी। इलाके में रेंजर्स की जानिब से बैनर्स लगाकर खबरदार कर दिया गया। बैनर्स पर तहरीर है कि लाइन को अबूर करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। रेंजर्स शरपसंदों को गोली मारने का इख्तियार रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा है कि अपोजिशन का रवैया कौमी मफादात से मुतसादिम है। कौम अपोजिशन अनासर के गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये को कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। मुल्की मफाद के मनाफी सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बदकिस्मती से अपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसे ही काट रही है। अपोजिशन जमातों ने अपनी खिफ़त मटाने की खातिर एहतजाज का सहारा लिया है। कोरोना, डेंगू या किसी भी कौमी चैलेंज पर इन्होंने हमेशा कौमी मफादात को फरामोश किया। वज़ीर आला पंजाब मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत के लिए म्यू अस्पताल गए। जख्मी पुलिस एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और इनके जज्बे को सराहा। अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। बलूचिस्तान असम्बली के 56 में से 39 अरकान ने कुद्दूस बेज़ंजो पर एतमाद का इजहार किया। नौमंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बेज़ंजो ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने उनसे हल्फ लिया। मैं अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली के 56 रुकनी ऐवान में 39 अरकान ने कुद्दूस बेज़ंजो को वोट दिया तो ऐवान में खिताब करते हुए वज़ीर आला कुद्दूस बेज़ंजो ने कहा कि मैं आज एक ऐलान करता हूँ कि मेरे लिए शाहराहें बंद न की जाएं, कोयटा को भी बेहतर बनाएंगे। शिकायत सेल का दोबारा इजरा किया जाएगा। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद जो पहले हुए मेरे लिए कोई रूट नहीं लगाए। कहीं पे मेरी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर दें। उनका कहना था कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएंगे तो स्कूलों की हालत बेहतर होगी। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस पे आप आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद और बात करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई की, जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज किया। कराची से कश्मीर तक और खैबर से गवादर तक मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। पीपल्स पार्टी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले मुजाहिरों में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना शरीक हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। इस आदमी ने आपसे वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का, नौकरी दी नहीं दी, जिनके पास रोजगार था वो रोजगार छीन लिया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और बदीन में एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे से खुर्शीद शाह ने खिताब किया। जिससे कौम से वादा किया था कि तुम्हें नौकरियां
पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के जियाले सड़कों पर निकल आए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और दीगर शहरों में महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बलूचिस्तान के शहर सोबतपुर, खुजदार, योब और पशीम में भी महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ मुजाहरे हुए। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, बनू, डेरा इस्माइल खान और मर्दान में रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। गिलगित में राजा बाजार में बड़ा मुजाहरा हुआ। गजर, हुंजा, दियामीर, अस्तौर और दीगर इलाकों में भी जाले सरापा एहतजाज रहे। एक जानिब अपोजिशन सरापा एहतजाज तो दूसरी जानिब वजीर आजम मुआशी पॉलिसियों से मुतमईन। इमरान खान ने रोजगार को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि हमारी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गुर्बत में कमी आ रही है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि वर्ल्ड बैंक के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी हुई। 2011 में आलमी बैंक की गुर्बत की लकीर का यौमिया पैमाना 1.90 था। वजीर आजम ने कहा कि रमा माली साल गुर्बत की शरह 4.8% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल में 5.3% थी। पाकिस्तान में गुर्बत में बतदरीज कमी आ रही है और माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह 4% रह जाएगी। उनका कहना था कि हमारी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गुर्बत में कमी आ रही है। हुकूमती पॉलिसी में पैदावार और रोजगार में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। चीनी, टमाटर, आलू, अंडों समेत 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतें फिर बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.23% का बड़ा इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में महंगाई की शरह 14.31% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 10 रुपए 71 पैसे, आलू 3 रुपए 29 पैसे, चीनी 3 रुपए 77 पैसे, गुड़ 1 रुपए 93 पैसे फी किलो और अंडे 5 रुपए 38 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी 11 रुपए, दाल माश 2 रुपए 20 पैसे फी किलो और 2.5 किलो घी का डब्बा 7 रुपए महंगा हुआ। हालिया हफ्ते मटन 6 रुपए 48 पैसे, बीफ 2 रुपए 62 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दाल, मसूर और आटे के थैले की कीमत भी बढ़ी। हालिया हफ्ते 4 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी हुई। प्याज 2 रुपए 74 पैसे फी किलो, केले 2 रुपए 31 पैसे फी दर्जन, दाल मूंग 1 रुपए 30 पैसे फी किलो और लहसुन 1 रुपए 9 पैसे सस्ता हुआ। हालिया हफ्ते 22 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाइस रिक्शा ड्राइवर फारूक शाह भी मुश्किल में पड़ गया। घर का खर्च और बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया। बनू में आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान ने फारूक शाह से बात की। फारूक शाह की कहानी उसकी अपनी जुबानी जानते हैं। पिछले साल में तो थोड़ा थोड़ा गुजारा होता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो कोई भी पैसा नहीं देता। जो 50 रुपए का रेट था ना, वो अभी किसी को बोलेगा कि 50 रुपए दे दो, अभी बोलता है 30 रुपए हम देगा, क्योंकि वो भी मुश्किल में होता है ना, हर आदमी मुश्किल में होता है। अभी देखो, हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने बच्चों पे अच्छी तरह तालीम पढ़ाओ, लेकिन क्या करें, मजबूरी से क्या करेगा, तो हम अरबाना देगा जो अरबाना चलाओ, क्योंकि तालीम का जो खर्चा होता है वो बर्दाश्त हम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हम रोजी नहीं कमा सकता। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी है। आज भी इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 61 पैसे कमी हुई। डॉलर का लेन देन 171 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। 3 रोज के दौरान डॉलर की कीमत में 3 रुपए 61 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। 26 अक्टूबर को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 175 रुपए 26 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में जेर तामीर तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिल्डर को इमारत से रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की भी इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कमिश्नर कराची इंतजाम की निगरानी करें और एक माह में स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में सकाफती इमारतों की देखभाल न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा
कि कराची में हर तरफ धूल, मट्टी, गंदगी और बदबू है। आर्ट काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट का डब्बा बना हुआ है। कराची में तो कई तारीखी मकामात हैं। किसी मुल्क में ऐसा कुछ होता तो वो सयाहत का जरिया बन जाता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सकाफती इमारतों की देखभाल न होने से मुतालिक केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी कल्चर सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने शहर में सकाफती इमारतों की मुनासिब देखभाल न होने पर सेक्रेटरी कल्चर पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के पीछे चले जाएं, हजारों खूबसूरत इमारतें हैं। ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट से पुरानी इमारतें बारी बारी गिराई जा रही हैं। अदालत ताखीर से आने पर जजेस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू जिम खाना कराची में कायम मार्की और आर्जी दफातर फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत को नापा के लिए प्राइम लोकेशन पर मुतबादिल जगह देने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिम खाना से नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंतकली केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मोहट्टा पैलेस में कोई जगह खाली है, वहां कुछ तामीर कर दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा यह प्रॉपर्टी तो रियासत की मिल्कियत है। मार्की और दफातर को हिंदू जिमखाना में कोई गुंजाइश नहीं। सेक्रेटरी कल्चर ने कहा हम मुतबादिल जगह दे रहे हैं, एकेडमी मुंतकिल हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा आप नॉर्थ कराची में जगह देंगे तो कौन जाएगा। अदालत ने हुकूमत को नापा के लिए प्राइम लोकेशन पर मुतबादिल जगह देने और एकेडमी के लिए ऑडिटोरियम और दीगर सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी की भी हिदायत की है। कराची नस्ला टावर मुकम्मल तौर पर खाली करने के लिए बिल्डर्स ने इतवार तक मोहलत मांग ली। तकरीबन 10 फ्लैट्स अब भी आबाद हैं। मुतासरीन मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। टावर गिराने के लिए किसी कंपनी ने कमिश्नर कराची से राब्ता नहीं किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। नस्ला टावर मुकम्मल तौर पर खाली ना हो सका। 10 फ्लैट्स में अब भी मकीन मौजूद हैं। नुमाइंदा बिल्डर्स ने कमिश्नर कराची से इतवार तक की मोहलत मांग ली। हमें सारी चीजें मैनेज करनी है, फ्लैट को भी देखना है, घर को भी देखना है, इन लोगों को भी देखना है और फिर उनसे एग्रीमेंट बनाने हैं, इनसे बातचीत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची कमिश्नर कल जो डेडलाइन थी वो थोड़ी सी एक्सटेंड उन्होंने कर दी है। उनकी मेरी भी है, उन्होंने कहा है कि संडे तक का कहा है कुछ के आपको एक्सटेंड थोड़ा टाइम दे। नस्ला टावर के मुतासरीन मुआवजे के भी मुंतजिर हैं। हमने अपनी जगहें खाली कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर दिया उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास ना किसी ऑफिशियल ने कांटेक्ट किया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमें बताएं, तो हम इंतजार ही कर रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से इमारत गिराने के लिए दिए गए इश्तिहार में कंपनियों को 3 रोज में राब्ते की हिदायत की गई थी। ताहल कोई जवाब मौसूल न हुआ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।